اور جو ہم نے کیلکولیٹ خود سے کی ہے وہ 331 روپے ہے. جو ان کا ڈفرنس ہے وہ 4% ہے. 4% کا مطلب ہے ڈسکاؤنٹ ٹو بک ویلیو. بک ویلیو کے حساب سے ابھی 4% وہ اس کی پرائس کم پہ ہے. مارکیٹ میں جو پرائس ہے ہمارے شیئر کی HBL کی وہ کم ہے. جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عمیر. بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی جو مارکیٹ سے ہم شیئر پرچیز کرتے ہیں تو کیا وہ شیئر اتنے کا ہی ہوتا ہے در حقیقت؟ یعنی دیکھیں، دو طرح کی پرائسز ہوتی ہیں. ایک وہ پرائس ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آپ کا جو سٹاک ہے، جو شیئر ہے جب مارکیٹ میں جاتا ہے لوگ اسے خریدتے ہیں، اسے بیچتے ہیں، تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. مارکیٹ میں اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جیو پولیٹیکل جو کنڈیشن ہوتی ہے، جو سچویشنز ہوتی ہیں وہ بھی افیکٹ کرتی ہیں، اور جو مارکیٹ کا ایک سینٹیمنٹ سا ڈیولپ ہوتا ہے وہ بھی افیکٹ کرتا ہے. پولیٹیکل جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ بھی پرابلم کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو پرائس افیکٹ کرتی ہے، اوپر نیچے پرائس ہو رہی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں کہ یہ جو پرائسز ہیں اس کی بیس کے اوپر ایک ویلیو کیلکولیٹ کی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ہم فیئر ویلیو کیلکولیٹ کر رہے ہیں. فیئر ویلیو کیلکولیشن ہوتی ہے کہ ہم اس کی ریٹرن آن ایکویٹی بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کا ڈیویڈنڈ بھی دیکھتے ہیں، اس کی ارننگ پر شیئر ریشو بھی دیکھتے ہیں، اس کی نیٹ پروفٹ ریشو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائس ٹو ارننگ ریشو کیا بنتی ہے، اس کی گروتھ کیا بنتی ہے. پھر ایک جنرل سا ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ یہ جو اس کی جو پرائس ہے وہ اس بریکٹ میں ہو تو اس شیئر کو خرید لینا چاہیے. اچھا، اس سے اگلی چیز جو آپ نے آج سمجھنی ہے، جو سیکھنی ہے، آپ کا کروڑوں روپے کا لاس بچ سکتا ہے اگر آپ کو یہ چھوٹی سی بات جو ہے سمجھ آ جائے. جو بکس آف اکاؤنٹس کو ہینڈل کرتے ہیں وہ اس کو ٹیکنیکل طریقے سے بک ویلیو کہتے ہیں. یعنی وہ پرائس جو آپ نے فرنیچر خریدا اور اس دن آپ نے کتابوں میں لکھ لیا، بکس میں ریکارڈ کر لیا، جو مشینری خریدی اس کو آپ نے اس کی اصل پرائس پہ وہاں پہ لکھ لیا، اور اسی طرح آپ نے گاڑیاں خریدیں، گاڑی کو آپ نے وہاں پہ لکھ لیا. یہ ساری پرائسز کو جمع کیا جائے اور وہ پیسے جو آپ نے لوگوں کے دینے ہیں وہ مائنس کر دیے جائیں تو کیپٹل نکل آتا ہے. اس کیپٹل کو ایکویٹی بولتے ہیں. اس ایکویٹی کے اگینسٹ آپ نے جتنے بھی شیئرز دیے ہوئے ہیں اس سے کیلکولیشن کی جاتی ہے کہ آپ نے جو شیئر دیے ہیں ان کی اصل قیمت کیا ہے. بک ویلیو اور فیئر ویلیو عام طور پہ لوگوں کو اس چیز کے اندر ڈفرنس نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. آج ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو مارکیٹ میں ہم ایک جو ویلیو بولتے ہیں کہ واٹ از دی فیئر ویلیو. تو فیئر ویلیو تو آپ نے سنا ہوگا، اور یہ فیئر ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیئر جو ہیں یہ ایسٹیمیٹڈ ان کی ورتھ کیا ہے. یہ بیس کرتی ہے کہ کسی بھی کمپنی کا فیوچر کیسا ہے، ان کی جو ہے وہ ریٹرن آن ایسٹس کیا ہے، ریٹرن آن ایکویٹی کیا ہے، ان کا ڈیویڈنڈ کیا ہے، ان کی ارننگ پر شیئر کیا ہے، کمپنی کی پرسنل جو ریپوٹیشن ہے وہ کیسی ہے، وہ پروڈکٹ کیسا بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی وجہ سے ایک مارکیٹ میں اس کی ایک ورتھ ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں فیئر ویلیو، اور یہ مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہی ہوتی ہے. ایک چیز جو انہوں نے 100 روپے کی شیئر کے طور پہ، اگر انہوں نے 100 روپے کا شیئر دیا اور مارکیٹ میں آج 700 روپے کا ہو گیا ہے تو مارکیٹ اس چیز کا اندازہ لگاتی ہے، ایسٹیمیٹ لگاتی ہے کہ اس کمپنی کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے اور یہ ہمیں پیسے زیادہ دے گی کما کے، اس لیے اس کو جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے وہ دے رہے ہیں. یعنی 100 روپے کی چیز کے بدلے میں 600 روپے ایکسٹرا دینے کے بعد 700 روپے کا مارکیٹ سے وہ شیئر خرید رہے ہیں. اس کو ہم فیئر ویلیو بولتے ہیں کہ what the share is reasonably estimated to be worth based on its fundamentals and future prospects. future prospects کے point of view سے ہوتا ہے. اور ایک ہوتی ہے market value, what investors are currently willing to pay, کہ انویسٹر کتنے پیسے دے سکتے ہیں آپ کے شیئرز کے. اور بک ویلیو آج جو ہم کانسیپٹ سمجھنے جا رہے ہیں، ہم آپ کو جو کانٹینٹ دیں گے یہ الحمدللہ کسی بھی جگہ سے آپ کو نہیں ملے گا، نہ ہی آپ کو کوئی اتنی ڈیٹیل ویڈیو سمجھائے گا، نہ دکھائے گا. ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل اور اتھینٹک جو اس کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہی آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھے آپ دوستوں کے کامنٹ ہوتے ہیں. تو بک ویلیو جو ہے what the company's accounting books say the assets are worth. مطلب یہ ہوا کہ کمپنی کی جو بکس ہوتی ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کہ بکس آف اکاؤنٹس، اس کے اندر ایسٹس کی، لائبلٹیز کی،
जो एक वर्थ लगी होती है, एक चीज़ आपने फर्नीचर खरीदा उसकी एक प्राइस लिखी हुई है, मशीनरी खरीदी उसकी प्राइस लिखी हुई है, आपने बिल्डिंग खरीदी उसकी प्राइस लिखी हुई है, और इसके बदले में जो जो लाइबिलिटीज आपने देनी है वो भी लिखी हुई हैं। अब अगर हम एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो जो बच जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। जिस तरह अब इसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू पर शेयर। अब इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, एक चीज इसमें है शेयर होल्डर्स इक्विटी और दूसरा है टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स। ये दोनों कहाँ कहाँ हमें मिलेंगे? शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है ये आपको उनकी ऑडिटेड रिपोर्ट के अंदर नजर आएगी, ये आपको और कहीं नजर नहीं आती और ना ये वेबसाइट के ऊपर दी होती है। और दूसरे नंबर पे आता है टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स। ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं ये इससे हमने तकसीम करना है। हम आपको अभी दिखाएंगे भी कि ये कहाँ कहाँ से आपको चीजें मिलेंगी। तो अभी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं HBL का, हबीब बैंक लिमिटेड का। उनके जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो 485 बिलियन रुपीज है और जो इनके शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, जो उन्होंने शेयर्स अब तक इशू किए हुए हैं वो हैं 1.467 बिलियन रुपीज के। अच्छा, ये बिलियन को भी जरा पढ़ना समझ लें आज कि ये 9 जीरो होते हैं, यानी ये 3 और ये 3 6 और ये 3 9। अब ये 9 जीरो के बाद यहाँ पे जो आया ये आ गया बिलियन। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 1.466 बिलियन रुपीज, और इसका मतलब हुआ कि 9 से ऊपर जितने भी अमाउंट है वो बिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी ये देख लेते हैं। अब आप देखें कि ये हबीब बैंक लिमिटेड, ये हमने इसकी जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डेटा पोर्टल आप खोलेंगे तो हबीब बैंक जो है आज है 25 अगस्त। आज हमने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया। अब इसके यहाँ पे शेयर्स इक्विटी प्रोफाइल दिया हुआ है। अब इक्विटी प्रोफाइल में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखे होते हैं शेयर्स। ये वो शेयर्स हैं जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे। उन शेयर्स को आपने, हमारे पास जो ये शेयर्स आए आप देखें ये वही शेयर्स हैं जो वहां पे लिखे हुए थे। अब हमने इनको कैसे करना है, अब आप देखें यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड इंटरम जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ये HBL की जून 30, 2026 की है, यानी अभी की लेटेस्ट वाली है। ये सारे एसेट्स लिखे हुए हैं, ये लायबिलिटीज लिखी हुई हैं। ये एसेट्स का मतलब ये इनकी एक तरह के असासाजात हैं, सारे के सारे इनके एडवांसेस इन्होंने कितने दिए हुए हैं और इनके पास जो है वो कैश कितना है, बैलेंस इन अदर बैंक्स कितना है, इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितनी की है और लायबिलिटीज जो इन्होंने पे करने हैं। तो जो टोटल नेट एसेट्स आते हैं आफ्टर लायबिलिटीज तो वो हमारे पास ये बच जाते हैं। अब इसका अगला पोर्शन देखो कि यहाँ पे ये जो इनकी जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो दी हुई है। शेयर होल्डर्स इक्विटी ही तो हमें ढूंढनी है। इसकी मजीद आगे डिटेल ये है कि शेयर कैपिटल इसके अंदर लिखा होता है, इसके अंदर रिजर्व्स लिखे होते हैं, इसके अंदर वो जो प्रॉफिट्स उन्होंने इकट्ठे किए वो और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, ये सारा जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये 485 485 बिलियन। अच्छा, यहाँ पे तो वो 00 ये 1000 यानी इसके साथ 1000, क्योंकि फिगर्स काफी बड़ी होती है तो ऊपर लिखा होता है कि 1000 आपने इसके साथ ऐड करना है। तो 485 बिलियन की इनके जो है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी है, यही हमें निकालनी होती है और ये यहाँ पे दी होती है। हमने खुद से कुछ नहीं करना, हमें पता होना चाहिए ये लिखी कहाँ पे है। अब देखें, आपने देखा कि कंसोलिडेटेड जो इक्विटी थी वो थी 485 और आउटस्टैंडिंग जो शेयर थे वो थे 1.466 या 1.467 बिलियन रुपीज। ये स्टॉक है इनका और जो इन्होंने इशू किया हुआ है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें इक्विटी को, इसके ऊपर जो डिवाइड कर दें 1.4667 तो ये हमारे पास आता है 331। यानी इससे मुराद ये है कि हमने जो कैपिटल इकट्ठा किया वो 331 रुपये 16 पैसे का एक शेयर है। इसका मतलब हमारे जो एसेट्स थे, लायबिलिटीज थी, वो इतनी मालियत के हैं। अब इनको अगर हम चेक करना चाहें, अगर मार्केट में देखना चाहें कि यार हमारा जो शेयर है वो फिर कितने का हुआ, उसी को ज्यूम करके हमने इसको इलस्ट्रेट किया है। तो हम निकालेंगे प्राइस टू बुक।
रेशो, प्राइस टू बुक रेशो जो है ये मार्केट वैल्यूएशन होती है, और एसेट प्राइसिंग डायनामिक्स हम चेक करते हैं इससे क्या है वो। तो यूं है कि जो मार्केट में इस वक्त जो इसकी हबीब बैंक की जो करंट प्राइस चल रही है वो 318 रुपए के करीब है। आज तो 317 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब हमने ये इसकी इलस्ट्रेशन डेवलप की तो उस वक्त 318 रुपए रेट था। खैर आप इसको ज्यूम कर लें, समझने के लिए हमने करना है। तो P ओवर B रेशो होती क्या है? मार्केट में आपका जो करंट प्राइस है शेयर का वो है 318, इसको डिवाइड कर देंगे बुक वैल्यू पे, जो हमने बुक वैल्यू भी निकाली, तो आपको एक परसेंटेज निकल आएगी या आपको एक अमाउंट निकल आएगी। तो अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 318 ये करंट प्राइस है और 331 रुपए वो प्राइस है जो बुक वैल्यू बनती है, यानी जो हमने कैलकुलेट की कि भाई ये एसेट्स और लायबिलिटीज असल प्राइस क्या है। जब भी कोई चीज खरीदता है वो पूछता है यार इसकी असल प्राइस क्या है, तो भाई ये इसकी असल प्राइस ये है 331, जितने कि इनके पास एसेट्स हैं लायबिलिटीज हैं, यानी ये वो कम से कम प्राइस है कि जिस दिन कंपनी कहे कि जी बस हम मार्केट को छोड़ें तो इनकी असल में दर हकीकत उनकी प्राइस जो उनके एसेट्स के अगेंस्ट है, लायबिलिटीज के अगेंस्ट है, वो 331 रुपए है। अब देखें यहाँ पे भी डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या है कि इनका जो 318 का और 331 का फर्क है, यानी मार्केट में जो इनकी प्राइस है वो कम है इस वक्त। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.96। तो 0.96 का मतलब ये है 1 रुपए के बदले में हमें 0.96 रुपीज जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमने कैलकुलेट किया, ये उसका रिजल्ट है कि हमें 0.96 पे करना पड़ रहा है, यानी हम असल प्राइस से भी कम पैसे दे रहे हैं। इस वक्त मार्केट में जो हबीब बैंक है इसके जो शेयर्स हैं ये अंडर वैल्यूड हुए हैं, यूं समझ लें, आसान लफ्जों में यूं कहना चाहिए कि इसकी प्राइस जो है अभी डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। अब ये इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ये इसकी करंट प्राइस है और जो हमने कैलकुलेट खुद से की है वो 331 रुपए है। जो इनका डिफरेंस है वो 4% है। 4% का मतलब है डिस्काउंट टू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू के हिसाब से अभी 4% वो उसकी प्राइस कम पे है। मार्केट में जो प्राइस है हमारे शेयर की HBL की वो कम है। अच्छा आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि जो हमने इसकी जो कैलकुलेशन की एसेट प्राइसिंग और डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर करें तो भाई ये 96% जो है ना इसकी प्राइस बनती है और 100 रुपए में से 4 रुपए ऐसे हैं जो डिस्काउंट के तौर पे आपको मिल रहे हैं। तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंटरप्रिटेशन है वो फिर क्या है, वो ये है कि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड हम देखें तो सबसे पहले तो ये है कि इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि अगर मार्केट में जो प्राइस है वो वही है जो आपकी बुक वैल्यू के बराबर है तो उसको बोलेंगे कि आपने ना तो डिस्काउंट को दिया ना ही आपने कोई प्रीमियम चार्ज किया, तो मार्केट प्राइस जो है परफेक्टली मैच कर रही है अकाउंटिंग नेट एसेट वैल्यू के साथ और ये रिफ्लेक्ट कर रही है न्यूट्रल प्राइसिंग कंडीशंस को। तो हम इसे बोलेंगे कि ये प्राइस जो है ये बिल्कुल ठीक है। और अगर प्राइस कम हो यानी जो मार्केट प्राइस है वो असल से कम हो, जैसे अभी हमने निकाला 331 रुपए प्राइस थी जो बुक वैल्यू थी और मार्केट में जो प्राइस है वो 318 रुपए हमारे शेयर की है, तो ये मार्केट में 4% कम है। तो इसका मतलब ये है कि आप वो जो दे रहे हो वो डिस्काउंट पे दे रहे हो, शेयर जो आपका बिक रहा है वो मार्केट में डिस्काउंट पे मिल रहा है। और अगर इससे ज्यादा हो, مثلا जो आपकी बुक वैल्यू है अगर उससे ज्यादा की वो चीज बिक रही है मार्केट में 331 हमने कैलकुलेट किया, मार्केट में बिक रहा है अब 400 रुपए का, इसका मतलब है जो रिमेनिंग अमाउंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं लोग वो एक तरह का आपकी कंपनी की रेपुटेशन है जो लोग आपको पे कर रहे हैं या वो देने के लिए तैयार हैं कि भाई ये अच्छी कंपनी है, ये नफा भी देगी, डिविडेंड भी देती है और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी ठीक है और इसकी मार्केट भी ठीक है, इसलिए लोग एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देते हैं। तो जैसे हम बात आपसे की कि अगर मार्केट में प्राइस आपकी कम हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी बुक वैल्यू जो है बुक वैल्यू से डाउन जा रहा है तो डिस्काउंट है और उससे ऊपर हो तो वो प्रीमियम है, और अगर इक्वल हो तो इसका मतलब है जो प्राइस इस वक्त आपके शेयर की असल बनती है उतनी ही मार्केट में वर्थ है। आप हर बैंक को कैलकुलेट कर सकते हो, हर कंपनी को कैलकुलेट कर सकते हो, 550 के करीब कंपनीज हैं और हर कंपनी का आप जो बुक वैल्यू है कैलकुलेट करें और इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस शेयर के बदले में लोग कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं या वो कंपनीज वाले क्या चार्ज कर रहे हैं या मार्केट में उसकी क्या वर्थ है, इसके बारे में जरूर हमें बताइए जो आपके
ڈفرینٹ اس کے پوائنٹ آف ویو سے کویشچنز ہوں گے، پھر ہم اس کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ کو اس کے آنسر بھی دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا رکھیے خیال. شکریہ.